सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। ਨਮਸਕਾਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਐਸਏ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਲਈ ਅੱਜ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲਾਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਦੀਪ ਦਾਸ ਹੈ। ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਭਗਤ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਲਰਾਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਇਰਾਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੱਖੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬੜੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। मूल पूंजी नाश कर लिया, किन हो मूल गवाही। अपने आत्मा जो भक्ति ने ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं ਤੇ ਜਾਣਦੇ हैं इस सेवा के बारे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम प्रतोष दास है, हम टंडा से आए हैं भैया जी। सर, आप यहाँ पे हर बार सेवा करने आते हो? जी सर, जितना बेर सत्संग होता है उतना बेर हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो सर आप हर बार यहाँ पे सेवा पे आते हो, तो सर आप हमारे दर्शकों को थोड़ी सेवा के महत्व के बारे में बताएं सर। सेवा के लिए आते हैं सर, इसमें जो है हम लोग पुण्य बनाने के लिए आते हैं यहाँ पर। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਰਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ। ਸਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਟਾਂਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੰਨ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੁੰਨ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਸੇਵਾ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪੁੰਨ ਬਣਨਗੇ ਬਹੁਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? मनोहर दास टांडा से आए हैं सर। सर, आप यहाँ पे हर बार सेवा करने आते हैं, सर आपका क्या विचार है इस सेवा के बारे में? सेवा अपने जलराम के यहाँ लगे हुए हैं, मैं तो हर एक बार आते हैं सर, और इसमें बहुत अपने अपने पुण्य बनाने के लिए, अपने सेवा अपने मार्ग सही करने के लिए, अगला भी मोक्ष हो, आगे भी सही चले, अपनी जीवन कायम रखने के लिए सेवा कर रहे हैं सर, अपने प्रदान करने के लिए बस यहाँ जलराम के सेवा में लगे हुए हैं और अपने भक्ति कर रहे हैं। सत्संग। धन्यवाद सर। कबीर भगवान ने तो हम उनको गुरु मानने लगे थे। ये दयालु हैं, इन पे हमारा दुख देखा नहीं जाता, लेकिन हम इतने बुद्धिहीन बना दिए इस काल भगवान ने, हम पहचान नहीं पा रहे अपने दाता ने।
और उसको ना पहचान कर हम अभी तक भटक रहे हैं या कष्ट उठा रहे हैं। तो क्या बताते हैं परमात्मा के दुगने तिगने किए चौगने किन्हू मूल गवाही। किसी ने तो इसके दुगने तिगने चौगने बना लिए, किसी ने इसका मूल धन ही नष्ट कर दिया। परमात्मा हमें ये याद दिलाने आए थे कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो और तुम सतलोक में रहा करते थे। यहाँ पर काल भगवान ने आपको एक आपके ऊपर इतने कवर चढ़ा दिए, स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, फिर महाकारण शरीर, फिर कैवल्य शरीर, और उसके अंदर आपका ओरिजिनल शरीर है। और फिर ये ऐसा शरीर दे दिया इसमें कदे बीपी आई, कदे लो हो जा, कभी कोई बीमारी कोई टेंशन होगी, हर समय आपको पीड़ित रखता है। इसलिए हम उस परमात्मा को पहचानने में सफल नहीं हो पा रहे। अब हम पहचानेंगे भगवान को, क्योंकि समय आ गया है। आपके ऊपर मेहर करी परमात्मा ने, जिस ज्ञान को अभी तक छुपा रखा था वो आपके ऊपर बरसा दिया भगवान ने, और थोक के बाका बरसा दिया। 1 महीने में 2-2 सत्संग 3-3 दिन के, और आप जी को फिर वहां से जमानत भी परमात्मा करवा के लाता आपकी। ये ना सोचना कि आप स्वयं आ पाओगे यहाँ पर, इधर आपका मुख भी नहीं करने दे ये काल, ये सत्कर मान लेना। और चाहे कहीं चले जाओ ये खुश रहता है। किसी राधा स्वामी में देखो करोड़ों शिष्य, धन सदगुरु में देख लो लाखों करोड़ों शिष्य हैं, वहां बेशक जाओ, पर यहाँ आने से पहले 100 बाधाएं पैदा करने की चेष्टा करता है। उसको पता है कि वो तो अपने ही हैं, पंथ हैं, काल के ही पंथ हैं। वो तो ना वहाँ नाम है ना उनका ज्ञान है, दुनिया को काल के जाल में फंसा के बैठा रखा है। और यहाँ आने से उसकी पोल पाटे सारी। तो यहाँ आपको परमात्मा लेकर आते हैं, आपकी जमानत करा के लाते हैं कि 3 दिन की जमानत, 4 दिन की जमानत करवा ले। काल की कैद है या इस कैद में हम अपना वो कर्म भोग रहे हैं जो हमें सजा मिली हुई है, और वहां से 3 दिन की छुट्टी करा के लाओ आपकी। यह जमानत पा रहे हो आप, ये समझ लेना। यहाँ कोई काम नहीं, परमात्मा के नाम के सिवा दूसरी बात नहीं। और यहाँ कर भी कोई और बात चलाता है तो महा अपराधी प्राणी है। कहते सत्संग के माँ आके कोई बात चलावे और 30 अपराधी आत्मा को 3 लोग नहीं ठोर। तो यहाँ आप आते हो, भगवान की चर्चा करते हो, किसी से आप सुनते हो, किसी को सुनाते हो, नए को जो भगवान ने सुनवाई की आपकी वो बताते हो, अनुभव बताते हो। तो ऐसे सारा दिन आपका मालिक की चर्चा में जाता है, यहाँ कोई टेंशन नहीं। और पुण्यात्मा सतलोक में ऐसा ही है, वहाँ कोई काम नहीं है आपको। वहाँ निष्कर्म में मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, बिना काम के वहाँ खाने को मिलता है। भरे भंडार हैं भगवान के, कोई उसमें कमी नहीं। तो यहाँ आप आते हो, आप यहाँ आते हो अपना कुर्ता पजामा लेकर आते हो, बाकी सारी सुविधा परमात्मा ने दासों के माध्यम से आप पुण्यात्माओं के लिए करवा रहे हैं।